ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾफ़ी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਿਪਸੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 77th ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। 77th ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਟਰੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਈਬ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। USA ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ USAID ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। US ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ US ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਰਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਰਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਲਖਨਊ ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। UP ਦੀ 3 ਫੇਮਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਗਲਸ ਸਟੂਅਰਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਜਿੱਤੇ। ਮੈਨ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਡਗਲਸ ਸਟੂਅਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਗੀ ਬੇਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਰਨਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਵਾਯਤਨ ਲਾਈਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਵਾਯਤਨ UK ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਵਾਯਤਨ UK ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CBIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? CBIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। GST ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 4th ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। SN ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ MD ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IRDAI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ SN ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ NDB ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। NDB ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ। $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮੀਰਟ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ। ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ
मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दे लई NDB द्वारा 500 मिलियन लोन दिता गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15th G20 समिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਥੀਮ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ 21st century for all। realizing the opportunities of 21st century for all। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग ਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। तीसरी ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग ਨੂੰ वर्चुअली इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर कौन ने? राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो। लोक सभा MP ने इन्हों द्वारा बुक्स इनोग्रेट की गई। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर इन्हों दोनों बुक्स ਨੂੰ इनोग्रेट किया गया लॉन्च किया गया जो कि प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीचीज़ का एक कलैक्शन है। ठीक है जी। इसे बुक के ई वर्जन लॉन्च किए गए हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा। रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन IT लॉ मिनिस्ट्री इन्होंने लवे। इन्होंने माई स्टैंप ऑन छठ पूजा नू रिलीज़ किया, एक स्टैंप रिलीज़ की है, प्लस एक कवर रिलीज़ किया है। कवर की थीम रहेगी छठ अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लीनलीनेस। छठ अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लीनलीनेस। नैक्सट USA द्वारा जेम्स स्टोरी नू 10 सालों के पहली बार एंबेसडर अपॉइंट किया गया वेनेजुएला दे विच। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखनी है वेनेजुएला कैरेकस और करेंसी चलती है बोलीवर। इस तो इलावा USA बारे प्रॉमिस्ड लैंड बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विच है, इसनूं जरूर याद रखना है। बराक ओबामा USA के 44वें प्रेजिडेंट द्वारा इसनूं लिखा गया सी। दूसरी गल, इस टाइम 46वें प्रेजिडेंट ने जो बिडन और वाइस प्रेजिडेंट का नाम याद रखना है कमला हैरिस। इंडियन ओरिजन ने इस करके अपने लिए नाम इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है अ वर्चुअल सैरेमनी फॉर द जॉइंट लॉन्च ऑफ रुपए कार्ड का फेज़ 2 लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान दे विच फेज़ 2 लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान के नाल मिलकर डॉक्टर लोटे शेरिंग। इस तो इलावा भूटान के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया, वो आप डिस्कस करांगे। UAE की गल करते हैं। UAE द्वारा सस्पेंड किए गए हैं वीज़ाज, बेसिकली कि जोड़े नवे वीज़ा 12 ऐसी कंट्रीज़ चूज़ की गई इन्होंने द्वारा जिन्हों के नवे वीज़ियां के उत्ते बैन लगाया गया UAE द्वारा पाकिस्तान को मिला के 12 कंट्रीज़ के नवे वीज़ा इशू करने के उत्ते बैन लगाया गया। पंजाब द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना लॉन्च की गई है पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा। गवर्नर का नाम याद रखना है VP सिंह बदनौर। मुंबई महाराष्ट्र ऐसी पहली सिटी बनी है इंडिया की जिसने एक प्लान डेवलप किया है फॉर द डेजिग्नेटेड स्पेसिस फॉर वूमेन नीड्स। बेसिकली वूमेन नीड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया गया। पहली ऐसी सिटी बनी है महाराष्ट्र की या कह सकते हैं इंडिया की जिसने ऐसा इस तरीके का एक प्लान डेवलप किया है। नेक्स्ट है कर्नाटका द्वारा अपना 31st डिस्ट्रिक्ट विजयनगर अनाउंस किया गया है। हुण कर्नाटका दे विच टोटल किन्ने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं जिसनों बलारी तो अलग किया गया। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा दाए दीदी मोबाइल क्लीनिक वैनस लॉन्च की गई ने, इनोग्रेट की गई ने ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और 19 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व करने के लिए बेसिकली 1917 के इन्हों का बर्थ होया सीगा। इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के नाल ऑफ $120 मिलियन। $120 मिलियन का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के नाल साइन किया है किस दे लई? टू मॉडरनाइज द ट्रांसपोर्ट सैक्टर ऑफ मेघालय के ट्रांसपोर्ट सैक्टर को मॉडरनाइज करने के लिए इसनूं बनाया गया। ठीक है जी। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन की गल करते हैं तो स्टैटिक पोर्शन के
ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਵਾਸ, ਚਿਲਚਿਲਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਔਰ ਨਾਹਰ। ਬਿੰਦੀਵਾਸ, ਚਿਲਚਿਲਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਔਰ ਨਾਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲੀਬਾੜਾ, ਕੀਬਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ, ਕੁਬਤੀ, छैल और धौलाधर। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने सिंबलबाड़ा, कीबर, गोबिंद सागर, कुबती, छैल और धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश के विच। जम्मू कश्मीर के विच त्रिकुटा, नदांदी, गुलमर्ग और जसरोटा। गुलमर्ग तो हर एक नूं पता होएगा। त्रिकुटा, नदांदी, गुलमर्ग और जसरोटा। झारखंड दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। हरारीबाग और दलमा, हरारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के विच है। इस तो इलावा पलामाऊ और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामाऊ और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के विच है। ठीक है जी, नाम इंपोर्टेंट बन गए, याद रखने। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। फर्स्ट न्यूज़ है अपनी वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व किया गया 21 नवंबर को। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व किया गया। इस दिन की थीम रही सी, इंपोर्टेंट थीम रहेगी, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा होर भी काफ़ी डेज से जिहड़े डिस्कस करते हैं। सब तो पहले वर्ल्ड फिशरीज डे को 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही सोशल रिस्पोंसिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। सोशल रिस्पोंसिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन इस दिन की थीम रही 21 नवंबर। 20 नवंबर की गल करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसने अपने 4 साल पूरे किए हैं 20 नवंबर 2020 को। 20 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 4 साल पूरे किए हैं। इस योजना को आगरा यूपी के 2016 के लॉन्च किया गया सी। 20 नवंबर 2016 को इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया सी आगरा दे विच, आगरा यूपी दे विच। ठीक है जी। अच्छा, आगरा बारे आप एक न्यूज़ पहले 2 दिन पहले डिस्कस की सी कि आगरा की एक साइट है लीथम लेक, उसनों की किया गया? सुर सरोवर डिस्कस किया सी आपां ने, सुर सरोवर या लीथम लेक, जिसनों रामसर साइट बनाया गया। उसनों बनाने दे नाल टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुके हैं इंडिया के विच? 41 रामसर साइट्स याद रखनियां ने। इस तो इलावा वर्ल्ड टैलीविजन डे भी 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड टैलीविजन डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 21 नवंबर को वर्ल्ड टैलीविजन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नैक्सट चलते हैं बुक रिलीज़ की गई है रिपोर्टिंग इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन ने? इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया है? इस बुक के ऑथर ने प्रेम प्रकाश द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है, किन्ना ने लिखी? प्रेम प्रकाश, रिपोर्टिंग इंडिया। इस तो इलावा अगर गल करते हैं विनय सीतापति की, विनय सीतापति तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। तमल बंदोपाध्याय पेंडेमोनियम, इंपॉर्टेंट रहेगी पेंडेमोनियम तमल बंदोपाध्याय। जुगल हंसराज द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड बुक जुगल हंसराज। अनुपम खेर की गल करते हैं। अनुपम खेर की तीसरी बुक इन्हों द्वारा लिखी गई है योर बेस्ट डे इज़ टूडे। सो द सब तो बेहतरीन दिन किस दिन है? अज का दिन है। इंपॉर्टेंट अगर आप थॉट की गल करते हैं तो काफ़ी अच्छा थॉट भी है कि हर एक दिन को अपना बेस्ट दिन मान के चलो तो थोड़े दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेशनल न्यू बॉर्न वीक किस दिन ऑब्जर्व किया गया? नेशनल न्यू बॉर्न वीक ऑब्जर्व किया गया कदों तो लैके कदों तक ऑब्जर्व किया जा रहा है? 15 तो लैके 21 नवंबर तक। ठीक है जी, 15 तारीख तो लैके 21 नवंबर तक नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 ऑब्जर्व किया गया। अगर आप इसकी गल करते हैं डिटेल के इसमें डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा ये याद रखना, ये आप डिस्कस कर चुके हैं कि 14 तो लैके 20 तारीख तक
ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੀਕ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੀਕ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਰਿਹਾ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। इस तो इलावा राजस्थान द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई, 2 स्कीम्स वत्सल्य और सामर्थ, ठीक है, वो याद रखनिया ने। इस तो इलावा जोधपुर राजस्थान के इन्हों द्वारा एक चाइल्ड केयर सेंटर भी इनोग्रेट किया गया, चाइल्ड कंसलटेशनल एंड केयर सेंटर जोधपुर के, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान रिलेटेड होर भी इंपोर्टेंट न्यूज़ है डिस्कस करांगे। सब तो पहले चलते हैं न्यू बॉर्न वीक के रिलेटेड कि नैशनल न्यू बॉर्न वीक 2020 15 तो लैके 21 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया टू री इनफोर्स द इंपोर्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न हेल्थ एज ए की प्रायोरिटी एरिया ऑफ हेल्थ सैक्टर दे की प्रायोरिटी एरिया बेसिकली न्यू बॉर्न की हेल्थ जिहड़ा इंपोर्टेंट बनाने के लिए नैशनल न्यू बॉर्न वीक ऑब्जर्व किया गया। थीम इंपोर्टेंट बनेगी क्वालिटी इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट ए हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर, ठीक है। वैसे एग्जाम के अगर इन्नी वड्डी थीम है नहीं पूछी जाती, पर अपने लिए सिंपली याद रखना है कि नैशनल न्यूबॉर्न वीक 15 तो 21 नवंबर तक, और ये क्यों ऑब्जर्व किया गया, हैल्थ क्वालिटी इक्विटी एंड डिग्निटी नूं बनाने के लिए, न्यूबॉर्न की हैल्थ फैसिलिटी नूं अवेयर करने के लिए इसनूं ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बुकिंग गैस LPG सिलेंडर्स। बेसिकली LPG सिलेंडर्स की गल करते हैं, LPG रिलेटेड जो न्यूज़ ने एक आप इत्थे डिस्कस करांगे, एक प्लांट लगाया गया उसके बारे भी डिस्कस करांगे कि जिहड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है बुकिंग LPG सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए इंपोर्टेंट होएगा कि इस दे विच टॉप किसने किया, पेटीएम ने। रीसेंटली पेटीएम द्वारा बेसिकली 2019 दे विच पेटीएम द्वारा गैस बुकिंग सर्विसिज शुरू की गई, ठीक है। सब तो पहले इन्होंने HP के नाल एग्रीमेंट साइन किया, उस तो बाद इंडेन के नाल, उस तो बाद होर डिफरेंट कंपनीज़ के नाल भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया गैस बुकिंग के लिए, ऑनलाइन गैस बुकिंग पेटीएम द्वारा किए जाने लिए, ठीक है। हुण रिकॉर्ड की गल करते हैं तो इन्हों द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बने कि पेटीएम द्वारा सब तो ज़्यादा गैस बुकिंग्स की गई ने। टोटल गैस बुकिंग्स के विचों अगर आप डाटा अकॉर्डिंग टू द डाटा अगर गल करते हैं तो सब तो ज़्यादा गैस बुकिंग्स पेटीएम द्वारा की गई ने, ठीक है जी। तकरीबन 5 मिलियन ट्रांजैक्शन से अपने लिए अमाउंट अपने लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, सिंपली याद रखना है पेटीएम एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बने बुकिंग गैस सिलेंडर, ठीक है जी। नेक्स्ट है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कल की क्लास के इस बारे आप हल्का जिहा डिस्कस किया कि आप डिस्कस किया कि वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया गया 19 नवंबर को टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया गया। उस चीज़ करके इंडिया द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया गया टू प्रिवेंट हैजर्डस सीवर क्लीनिक। सोनू याद होएगा आप डिस्कस किया न्यूज़ डिस्कस की थी असम के रिलेटेड कि असम के जिहड़ा गुवाहाटी है वो तीसरी ऐसी सिटी बनी सी जिसने की बनाया सी, जिसने बंदीकूट रोबोट यूज़ करना शुरू किया सी। बंदीकूट नाम का रोबोट शुरू किया सी, सीवरेज क्लीनिक दे विच ह्यूमन की जगह रोबोट्स द्वारा सीवरेज क्लीनिंग की जाएगी, ठीक है। वह तीसरी सिटी बनी सी। सिमिलर तरीके दे नाल हुण अपना आंसर होएगा 243, तो 243 सिटीज़ नूं सिलैक्ट किया गया। फोर्थ ऑप्शन 243 सिटीज़ नूं सिलैक्ट किया गया कि उन्होंने दे विच सीवरेज की जिहड़ी क्लीनिंग है वो मशीन्स द्वारा की जाएगी, ना कि इंसान द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर इंसान जो उसनूं क्लीन करते हैं तो उन्होंने डैथ विच डिफरेंट गैसिज के करके वो बीमार हो जाते हैं, उन्होंने डैथ भी हो जाती है, ठीक है। और इसे करके किसी का साह घुटन करके डैथ हो जाती है। इस करके सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया गया 243 सिटीज़ के विच। इंपोर्टेंट रहेगा पहले तो कि 243 सिटीज़ के विच लॉन्च किया गया 19 नवंबर 2020 तो लैके 15 अगस्त 2021 तक चलेगा। यह पूरा कैंपेन चलेगा, ठीक है। 19 नवंबर जो टॉयलेट डे तो लैके 15 अगस्त अपने इंडिपेंडेंस डे तक यह कैंपेन चलेगा, जिसनों हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा मोनीटर किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी दे लवे है, राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो, ठीक है जी।
दूसरी चीज़ इस दे विच प्राइज़ मनी भी रखी गई है कि ਜਿਹੜੀ सिटी इन्हां 243 सिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ सिटी बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी बनेगी उसनूं 52 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी भी दी जाएगी। 52 करोड़ रुपीज़ एज ए प्राइज़ मनी दी जाएगी। ये याद रखना है, ठीक है जी। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बनने, जिन्ने भी फैक्ट्स इस न्यूज़ के विचों बन सकते सी अपने डिस्कस कर लेने। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंपनी बैग्स 7000 करोड़ ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया के विच लगाया डिफरेंट अगर आप गल करते हैं लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने विचों एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है अहमदाबाद तो लैके मुंबई तक का, या मुंबई टू अहमदाबाद कह लीए। एक गल है कि जिहड़ा ये मुंबई टू अहमदाबाद डिस्टेंस है 508 किलोमीटर का, 508 किलोमीटर, अहमदाबाद गुजरात मुंबई महाराष्ट्र का 508 किलोमीटर के डिस्टेंस के विच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लगाने के लिए 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट L&T कंपनी द्वारा, L&T कंपनी द्वारा, लार्सन एंड टर्बो बेसिकली इस कंपनी के बारे अपने उदों डिस्कस किया जो आप डिस्कस किया कि C451 और 452 कमीशन की गई सी इंडियन कोस्ट गार्ड के विच, जिन्होंने बनाया गया सी L&T कंपनी द्वारा। L&T एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट जितया है। 7000 करोड़ की प्रोजेक्ट की जी बिडिंग है वो जित ली है, और यह बनाएगी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद टू मुंबई या मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है जी। 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं टाटा बारे, याद रखना है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया है किसनूं, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर ने टाटा लिटरेचर अवार्ड दिता गया। 100+ बुक्स लिख चुके हैं, जिन्हों के विचों लास्ट बुक सी इन्हां दी हाउ टू बी अ राइटर, लास्ट बुक इन्हां द्वारा हाउ टू बी अ राइटर लिखी गई है, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं टाटा के जिहड़े हैड ने रतन टाटा, इन्हों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया सी इंडिया USA चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, इंडिया USA चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा। 2 अवार्ड्स इंपॉर्टेंट बनेंगे, याद रखने। नेक्स्ट है ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स 2022 विल हेल्ड एट विच प्लेस। इस न्यूज़ के कुछ चेंज नहीं होया, नवा नहीं है, पहले आप डिस्कस किया होया, दोबारा न्यूज़ के रहा क्योंकि इस दे बारे कहा जा रहा है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों टाइमली ऑर्गेनाइज करने के दिक्कत आएगी, क्योंकि 2022 के होर भी काफ़ी ज़्यादा ईवेंट्स ने। फॉर एग्जाम्पल कॉमनवैल्थ गेम्स होणगियां 2022 के, इस तो इलावा फीफा का मैच है, ICC के टूरनामेंट्स ने, इस करके कहा जा रहा है कि शायद इन्हों उपर थले किया जाएगा, इन्हों की डेट्स वगैरह के चेंजिस किए जाएंगे, पर फाइनली ओलंपिक कमेटी द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अनाउंस कर दिता गया है कि इन्होंने कोई चेंजिस नहीं है, इन्हों चाइना के ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स ने जोड़े 2022 के चाइना के ऑर्गेनाइज होंगे, 2021 के जापान होस्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना है। इस तो इलावा चाइना के जोड़े गेम्स होंगे, इसका जोड़े चाइना के जोड़े गेम्स होने ने, इन्हों के जोड़े कह सकते हैं मैस्कोट, मैस्कोट इंपॉर्टेंट रहेगा स्माइलिंग पांडा, स्माइलिंग पांडा, ये याद रखना है। इस तो इलावा ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग ने, ओलंपिक के जिन्ने भी इवेंट्स ने बिल्कुल लाइन वाइज इस सैटअप किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 जापान, 2022 चाइना, 2024 फ्रांस, 2026 इटली और 2028 USA, ठीक है जी। 2030 और 2032 के हजे अनाउंस किए जाने ने। बेसिकली 2032 की गल करते हैं तो इंडिया भी बिडिंग करने की सोच रहा है, इसके लिए परमिशन मंगी गई है, याद रखनी है। अच्छा, जो इंडिया है, अगर इंडिया की गल कर जोड़े समर ओलंपिक्स होंगे ने, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दोनों के 4 साल का फर्क होंगे, ठीक है। एक समर ओलंपिक का दूसरे समर ओलंपिक के नाल 4 साल का फर्क होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जापान की गल करते हैं 2020 के ऑर्गेनाइज किए जाने सी, 21 के ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, तो 20 तो 24 4 साल का फर्क, और 24 to 28 4 साल का फर्क, ये दोनों किहड़े ने, तीनों ओलंपिक किहड़े ने, समर ओलंपिक्स। इस तो इलावा चाइना हो गया और इटली हो गया 2022 2026। इस तो इलावा 2030 का जोड़ा होएगा वो भी किहड़ा होएगा, विंटर ओलंपिक्स।
विंटर ओलंपिक्स जिन्ने भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऐसी जगह के उत्ते ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिथे बर्फ जमदी होवे ताकि उत्थे जिहड़ी विंटर गेम्स ने फॉर एग्जाम्पल स्नो ताकि बर्फ आइस हॉकी होगी इस तरीके की गेम्स खेलियां जा सकन। ठीक है। सिमिलरली समर ओलंपिक्स किसी भी कंट्री के ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। 2024 के इंपोर्टेंट बनने 24 फ्रांस के। नैक्सट गल करते हैं ICC जी आप गल हुणे की सी कि कॉमनवैल्थ हो गया, फीफा हो गया, ICC हो गया, ओलंपिक हो गया, इन्होंने सारिया की गेम्स क्लैश हो रही सी। ठीक है। इस करके उस तो बाद अगर ICC की गल करते हैं तो ICC के इवेंट्स भी क्लैश हो रहे थे 2022 के काफ़ी इवेंट से। तो इन्होंने की कराया ICC वूमेंस T20 वर्ल्ड कप सीगा T20 वूमेंस वर्ल्ड कप 2022 के होना सी, इसनू पोस्टपोन कर लिया 2023 के। ICC वूमेंस T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके आप फीफा के डिस्कस किए 2 दिन पहले कि फीफा द्वारा भी अपने 2 टूरनामेंट्स 2020 के ऑर्गेनाइज किए जाने 2021 के पोस्टपोन किए गए, वो पोस्टपोन वाले कैंसल करके 2022 के राइट्स दे दिते गए इंडिया और कोस्टारिका को। ठीक है। आप डिस्कस किए हुण सिमिलर तरीके 2023 का वूमेंस T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। इन्होंने पोस्टपोन किया 2022 वाला इवेंट 2023 के लिए। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा ICC की अगर आप गल करते हैं काफ़ी बार अपन एक लिस्ट पूरी की पूरी थोड़ा मैं दे चुके हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लाँगे। इस बार लिस्ट नहीं दे रहा, रिवीजन करांगे। रिवीजन किस तरीके नाल करांगे? सब तो पहले ICC की गल करते हैं। ICC के किहड़े-किहड़े इवेंट्स होंदे ने? एक तो 50-50 हो गया, 50-50 ओवर वाला मैच वर्ल्ड कप होंदा जिहड़ा। ठीक है। उस तो बाद T20 हो गया। ठीक है। एक होंदा अंडर 19। 3 इवेंट्स होंदे ने ICC के। तीनों इवेंट्स मैन के होंदे ने, वूमेंस के होंदे ने। तो 50-50 मैनस वाला और वूमेंस वाला। मैनस वाला 2023 के इंडिया होस्ट करेगा, वूमेंस वाला 2022 के न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ठीक है। काफ़ी बार डिस्कस किया होया, इस कोई चेंज नहीं है, याद रखना है। ये पहले 2021 के ऑर्गेनाइज किया जाना सी, बाद इसनूं चेंज किया गया सी, ये याद रखना जरूरी रहेगा। इस तो इलावा T20 की गल करते हैं। T20 का भी मैनस वर्ल्ड कप और वूमेंस वर्ल्ड कप। मैनस वर्ल्ड कप 2021 का इंडिया होस्ट कर रहा है, वूमेंस वर्ल्ड कप 2022 का जिहड़ा आपां हुणे डिस्कस किया इसनूं पोस्टपोन करता 2023 के लिए। कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। ठीक है। इस तो इलावा मैनस वर्ल्ड कप 2022 का भी अनाउंस किया जा चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। अंडर 19 की गल करते हैं। अच्छा, एक होर सीगा मैनस वर्ल्ड कप जिहड़ा T20 मैनस वर्ल्ड कप 2020 का, यह भी ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। अंडर 19 की गल करते हैं 2021 दे विच वूमेंस वर्ल्ड कप होएगा बांग्लादेश दे विच। 2021 दे विच वूमेंस वर्ल्ड कप बांग्लादेश दे विच। ठीक है। और 2020 का जी सीगा अंडर 19 मैनस वर्ल्ड कप, ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया सी बांग्लादेश द्वारा। आप डिस्कस भी किया सी जिस दे विच सॉरी बांग्लादेश द्वारा नहीं, साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया सी, बांग्लादेश द्वारा जितया गया सी। 2021 का बांग्लादेश होस्ट करेगा वूमेंस वाला, और 2020 के विच मैनस वर्ल्ड कप बांग्लादेश जित गया सी, साउथ अफ्रीका के विच होस्ट किया गया सी, और इंडिया रनर अप रहा सी। ये याद रखना है। ठीक है जी। ICC के इवेंट्स काफ़ी इंपोर्टेंट होंगे, याद रखने ने। लिस्ट मैंने काफ़ी बार प्रोवाइड सानू की हुई है। नैक्सट है G20 फाइनैंस मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 की फाइनैंस मिनिस्टर मीटिंग हुणे आप डिस्कस की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा G20 की मीटिंग के पार्टिसिपेट किया गया। 15वां एडिशन सीगा, 16वां एडिशन इटली होस्ट करेगा, 17वां एडिशन इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है। हुण G20 यानी कि 17वां एडिशन कदों होएगा? 2022 के विच। ब्रिक्स का 13वां एडिशन इंडिया होस्ट कर रहा है 2021 के विच। तो G20 की फाइनैंस मिनिस्टर मीटिंग, फाइनैंस मिनिस्टर होंगे तो निर्मला सीतारमन इंडिया के फाइनैंस और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने कर्नाटक तो। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने। इस तो इलावा नरेंद्र सिंह तोमर लवे इंपोर्टेंट 3 मिनिस्ट्रियां सीगियां। सब तो पहले तो पंचायती राज मिनिस्ट्री। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर दे लवे पंचायती राज मिनिस्ट्री तो इलावा
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इस तो इलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तीन मिनिस्ट्रियां नाल वे पहले सीगियां। निर्मला अगर आप गल करते हैं अपने पंजाब तो हरसिमरत कौर बादल द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया सी एग्रीकल्चर लॉज के विरुद्ध। उस तो बाद जी एग्रीकल्चर इन्हों लवे मिनिस्ट्री सी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दी गई सी नरेंद्र सिंह तोमर तो इन्हों लवे 4 मिनिस्ट्रीज ने ये याद रखने। मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। पीयूष गोयल सिमिलरली इन्हों लवे 2 मिनिस्ट्रियां सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री। रामविलास पासवान की डैथ तो बाद उन्होंने भी 2 मिनिस्ट्री पीयूष गोयल को दी गई। पीयूष गोयल लवे कि होर 2 मिनिस्ट्रियां हो गई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, इस तो इलावा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री दी गई सी पीयूष गोयल को। नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री सी हरसिमरत कौर बादल दे लवे। माई मिसटेक। पीयूष गोयल की गल करते हैं राज्य सभा मैंबर ने महाराष्ट्र तो। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दे विच। बेसिकली यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट की गल करते हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने दोनों रीजनस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट्स के। इस तो इलावा डॉक्टर हर्षवर्धन की गल करते हैं, इन्होंने द्वारा अनाउंसमेंट की गई है 5000 आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर की। बेसिकली अगर आप गल करते हैं कि जी आयुष्मान भारत स्कीम है, इस स्कीम के अंडर 1.5 लाख हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर अनाउंस किए गए सी कि इन्हों बनाया जाएगा। इस दे लिए टारगेट रखा गया 2022 का दिसंबर के 2022 दिसंबर का इस टारगेट रखा गया। हुण इन्हों द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अनाउंस किए गए हैं कि 50,000 इस छेती ही लगा दिते जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है विद विच कंट्री इंडिया साइंड एग्रीमेंट फॉर एनहेंसिंग कॉरपोरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ स्पेस एंड विल लॉन्च इट्स सैटेलाइट नेक्स्ट ईयर। भूटान के बारे डिस्कस करते हैं कि आप डिस्कस किया हुणे थोड़े चिर पहले कि भूटान के नाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसदे बेसिकली एग्रीमेंट नहीं कहांगे कि जिहड़ा अपना भारत कार्ड है, भारत की गल करते हैं तो इस दे अंडर लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पेमेंट प्लेटफॉर्म कित्थे भूटान दे विच। ठीक है, हुण उसी दे नाल जदों इस एग्रीमेंट नूं साइन किया जा रहा सी तां एग्रीमेंट साइन किया गया स्पेस के रिलेटेड, स्पेस की कॉरपोरेशन के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया गया और अनाउंस किया कि इंडिया द्वारा भूटान की एक सैटेलाइट भी लॉन्च की जाएगी अगले साल भूटान की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। भूटान ने अपनी पहली सैटेलाइट अगर आप गल करते हैं भूटान 1 ये जापान की हैल्प के नाल लॉन्च की सी। हुण भूटान की एक होर सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करेगा। ठीक है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 अगर आप गल करते हैं बनाई गई सी। के सिवान हेड ने और कर्नाटका बेंगलुरु के विच लोग इसका हैडक्वार्टर है। भूटान की कैपिटल थिंपू है, करेंसी नगुलतरम चलती है, ये याद रखना है। ठीक है जी। इस तो इलावा थाईलैंड और पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। सब तो पहले थाईलैंड के नाल 30th एडिशन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या जिसनों शॉर्ट फॉर्म के आप कॉरपेट कहने हैं। कॉरपेट की फुल फॉर्म याद रखांगे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एडिशन याद रखांगे 30th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है थाईलैंड के नाल। ठीक है जी। बेसिकली इस एक्सरसाइज को 2005 तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है थाईलैंड के नाल हर साल 2 बार। ठीक है, इस करके इस साल इसनों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 30th एडिशन है और ये याद रखना इंडिया वालों INS कारमुक द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया वालों INS कारमुक द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी।
अच्छा सिमिलर एक्सरसाइज ਤੁਸੀਂ याद होएगा रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया ने बांग्लादेश ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया ने बांग्लादेश ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਂਗੋ ਸਾਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ बांग्लादेश ਦੇ ਨਾਲ मैत्री एक्सरसाइज भी बांग्लादेश ਦੇ ਨਾਲ पाकिस्तान इंपोर्टेंट रहेगा कि जिस तरीके आप कहने कि इंडिया और रशिया के रिलेशनस काफ़ी अच्छे ने तो हुण रशिया की कर रहा है पाकिस्तान के नाल भी रिलेशनस अच्छे कर रहे ठीक है पाकिस्तान के नाल इंडिया एक एग्रीमेंट साइन किया गया सी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ रशिया ने पाकिस्तान के नाल 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ एक एग्रीमेंट साइन किया सी जिस ਨੂੰ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा गया सी कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लगाएगा पाकिस्तान डेवलप करेगा रशिया डेवलप करेगा पाकिस्तान दे विच तो इसनू फाइनली हुण डेवलप किया गया है रशिया द्वारा जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया नाम रखा गया पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिस दे विच रशिया का 26% शेयर भी है और पाकिस्तान का बाकी कितना रह गया 74% पाकिस्तान का रह गया ये याद रखना है और ये प्रोजेक्ट किस दे लिए है LPG सप्लाई दे लिए LPG सप्लाई दे लिए है तकरीबन अगर आप गल करते हैं तो 1122 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन होएगी कराची दे पाकिस्तान के कराची तो लैके कसूर तक कसूर पाकिस्तान की जी पंजाब प्रोविंस है जिस तरीके अपने इंडिया के पंजाब है उस तरीके पाकिस्तान के भी पंजाब है तुहानूं पता ही होएगा तो उन्होंने का जो पंजाब है उस पंजाब का कसूर विलेज है तो कराची है जो कराची तो लैके कसूर तक ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट रहेगा ठीक है जी रशिया द्वारा डेवलप किया गया पाकिस्तान के हुण मेरे क्वेश्चन है कि आप रिसेंटली डिस्कस किया कि रशिया ने पाकिस्तान के नाल मिलकर एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी एक मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिस दे लई रशियन सोल्जर्स पाकिस्तान गए सी ठीक है बिल्कुल रिसेंटली आप डिस्कस किया लास्ट मंथ की गल है तो मैनू उस एक्सरसाइज का नाम दसना ठीक है जी कमेंट बॉक्स के उस एक्सरसाइज का नाम दसना मैं दसिया होया कमेंट बॉक्स के जरूर दसना नैक्सट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनोग्रेट जानकी सेतु ऑर्गेनाइज किया गया किहड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा जानकी सेतु की गल करते हैं जानकी सेतु उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गंगा रिवर के उत्ते गंगा रिवर के उत्ते बेसिकली गंगा का जोड़ा तेहरी गढ़वाल रीजन है जोड़ा उत्थे इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया इनोग्रेट किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा ठीक है जी अच्छा उत्तराखंड के रिसेंटली अपने दोबड़ा चांती ब्रिज भी डिस्कस किया यह भी याद रखना है उत्तराखंड के ही बनाया गया सी दोबड़ा चांती ब्रिज जो कि एक सिंगल लेन ब्रिज सीगा इस तो इलावा अगर आप ब्रिजिज की गल करते हैं तो रिसेंटली आपने काफ़ी ब्रिजिज डिस्कस किए हैं जिस ब्रिजिज तो इलावा अगर आप गल करते हैं टनल्स हो गई अटल टनल हो गई ठीक है इस तो इलावा जी कश्मीर के विच टनल जोजिला टनल अटल टनल उत्तराखंड के जोजिला टनल कितने होगी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कनैक्ट करने वाली इस तो इलावा रोपवे प्रोजेक्ट हो गए गिरनार रोपवे डिस्कस किया अपने गुजरात के गिरनार रोपवे असम के भी डिस्कस किया ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते एक रोपवे बनाया गया सी ठीक है ये सारे याद रखने इंपोर्टेंट रहेंगे कोई ना कोई एग्जाम के इन्हों पूछा जाएगा ठीक है जी इस तो इलावा न्यूज़ डिस्कस करते हैं अच्छा अज अपनी स्टेट आप MP डिस्कस कर लें MP के बारे डिफरेंट कैंपेन्स ने जोड़े MP द्वारा फॉर स्कीम्स ने और डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल जीवन शक्ति स्कीम आप डिस्कस की सी जीवन अमृत स्कीम MP द्वारा अगर आप गल करते हैं जीवन शक्ति इस तो इलावा इंतज़ार आपका कैंपेन इस तो इलावा FIR आपके द्वार कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन MP का है इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं किल कोरोना कैंपेन MP का है इन्होंने करमवीर अवार्ड शुरू किए थे पुलिसमैन के लिए इस तो इलावा तानसेन समारोह हो गया नर्मदा ओरछा फेस्टिवल हो गया इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रिसेंटली इन्होंने प्लास्टिक प्रीमियर लीग जिस तरीके IPL है उस तरीके PPL प्लास्टिक प्रीमियर लीग MP के इंदौर के लॉन्च की सी श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया रिसेंटली MP द्वारा ठीक है जी ये सारे कैंपेन MP के याद रखने नैक्सट है बाकी स्टेट के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं
सब तो पहले उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर एक न्यूज़ डिस्कस कर ली। दूसरा इन्होंने एक फैसटिवल इनोग्रेट किया है, नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसटिवल। नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसटिवल पहली बार इसनों ऑर्गेनाइज किया गया है और अनाउंस किया गया कि हर साल इसनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी दे नाल नैशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपीटीशन भी लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, फैसटिवल तो याद आया, इन्होंने एक होर भी फैसटिवल इनोग्रेट किया सी रीसेंटली, उसका नाम सी हॉट एयर बैलून फैसटिवल। हॉट एयर बैलून फैसटिवल भी उत्तराखंड के ही लॉन्च किया गया सी। ठीक है, याद रखना। दिल्ली की गल करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एक हाईटैक बिजनेस पार्क सैटअप किया जाएगा रानी खेड़ा जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है। दिल्ली के जल बोर्ड द्वारा अनाउंस किया गया कि यमुना रिवर की क्लीनिंग शुरू कर रही है। मार्च 2023 तक इसनों क्लीन किया जाएगा। इंपोर्टेंट बनूगा टारगेट। बेसिकली किसी भी चीज़ का जो टारगेट होंगे वो इंपोर्टेंट बनता है जो उसको सैटअप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया फ्री करने के लिए इंडिया के लिए केड़ा टारगेट है। ठीक है, टीबी फ्री करने के लिए केड़ा टारगेट है, हर घर जल प्रोवाइड करवाने के लिए केड़ा टारगेट है। ये टारगेट्स पूछे जाते हैं, एग्जाम के पूछे जाते हैं। आवास योजना का कितना टारगेट है, तो यह टारगेट याद रखने ने। तो यमुना रिवर की क्लीनिंग के लिए टारगेट अनाउंस किया गया 2023। एमपी गवर्नमेंट द्वारा पोषित परिवार सुपोषित एमपी कैंपेन। एमपी गवर्नमेंट द्वारा पोषित परिवार सुपोषित एमपी कैंपेन लॉन्च किया गया मेल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन तो याद आया, पोषण अभियान याद रखना है। पोषण मंथ सप्तैंबर को लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं उड़ीसा द्वारा डाइट जी आंगनवाड़ी डाइट है उस फिशिज का यूज़ किया गया सी मेल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए। ठीक है, याद रखने। नेक्स्ट है विच स्टेट्स पुलिस स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड ISO सर्टिफिकेशन ऑन मीटिंग द स्पेसिफाइड पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन पुलिसिंग। बेसिकली केड़ी स्टेट दे पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिता गया। जिस तरीके से अपने उड़ीसा बारे डिस्कस किया सी कि उड़ीसा के ट्राइबल होस्टल्स के लिए उड़ीसा को ISO सर्टिफिकेट दिता गया। ISO जी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जनेवा के हैडकुआटर है। याद रखना है, जनेवा स्विट्जरलैंड के इसका हैडकुआटर है। ISO सर्टिफिकेट किन्ना द्वारा दिता गया, नागालैंड को दिता गया। अपना ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन नागालैंड। बेसिकली नागालैंड के कोहिमा का, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा का नॉर्थ पुलिस स्टेशन, नागालैंड के कोहिमा के नॉर्थ पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिता गया है स्पैसीफिक पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के लिए पुलिस सिस्टम के। इस तरीके बनाया गया कि सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट करता है और पुलिस स्टेशन, इस करके इसको ISO सर्टिफिकेट दिता गया। ठीक है जी। बाकी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आंध्र प्रदेश द्वारा फैसटिवल इनोग्रेट किया गया है तुंगाभद्र पुष्करम फैसटिवल। तुंगाभद्र पुष्करम फैसटिवल कुरनूल आंध्र प्रदेश के इनोग्रेट किया गया। अच्छा, कुरनूल तो रिलेटेड एक न्यूज़ सी आप रिसेंटली डिस्कस की हुई है। कुरनूल के कुछ सैटअप किया जाना सी। कमेंट बॉक्स के दसना है कि कुरनूल के की बनाया जाना सी, कुरनूल आंध्र प्रदेश के की बनाया जाना सी। ठीक है, इस तो इलावा तुंगाभद्र एक रिवर है, इतने आंध्र प्रदेश के रिवर है तुंगाभद्रा, उसके पुष्करम फैसटिवल बेसिकली जिस तरीके गंगा के लोग डुबकियां लगान जाते हैं, काशी के जाते हैं, तो उत्थे ही सिमिलर तरीके तुंगाभद्र पुष्करम फैसटिवल को इनोग्रेट किया गया आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा। कर्नाटका द्वारा कडालू एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फिशरमैन के लिए। आप डिस्कस किया फिशरमैन डे, वर्ल्ड फिशरीज डे डिस्कस किया हमने 21 नवंबर को। उस दिन कडालू एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फिशरमैन के लिए। केरला द्वारा न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, सिंपली याद रखनी है कि विलो वार्बर एक स्पैरो है। जिस तरीके आप डिस्कस की थी मेरे माइंड से स्किप कर रहे नाम अमूर फाल्कन डिस्कस किया कि अमूर फाल्कन एक बर्ड है जो कि नागालैंड और मणिपुर के आता माइग्रेटरी बर्ड है। उस तरीके विलो वार्बर भी एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इंडिया के कदे नहीं आता, अगर इंडिया के उपरों ही चला जाता है। बेसिकली अगर गल करते हैं रशिया हो गया, रशिया वाली साइड तो चला जाता है, इंडिया के नहीं आता, पर इस बार इंडिया के केरला के देखी गई है ये बर्ड। ठीक है जी।
ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਡੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸਮ ਨੇ ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਨੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਕੋਸਟਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸਮ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।